Let's continue with the big asymptotic notation, and first one we'll do the big O notation. For big O notation, let f f1 and f1 and gn be two positive function, be two positive function, f1 and gn be two positive function. Okay, ठीक है. Then we can say f1 is order of g of n. f1 is order of g of n, or we can say f1 f of n equal to order of g of n. f of n equal to order of g of n if and only if f of n is less than equal to c dot g of n, c dot g of n for all n, where where n is greater than n naught, and c and n naught are two positive constant, are two positive, just a minute, yes, are two positive constant. Okay, so these are two positive constant where c is greater than 0 and n naught is greater than equal to 1, we can say, right? So what is this big O notation? Big O notation, we can say let f1 and gn are two positive functions. Okay, so these are two positive function, and we can say f1 is order of g of n. f1 is order of g of n, or we can write down f1 equal to order of g of n, right? f1 equal to order of g of n if and only if f1 is लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n कब लिखा जा सकता है? अगर ये सेटिस्फाई करता है, f1 is less than equal to c dot g of n. In such a case we can say f1 is order of g of n. Or for all n, okay, f1 is order of g of n for all n where n is greater than n naught. What is n naught? N naught is a constant. Okay, and c and n naught, these are two positive constant where c is greater than 0 and n naught is greater than 1. Yes, till this part it is clear or not? Yes, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? Yes. Yes. Yes, is it clear to all? Okay, now let's see the example. Yes, let's see example. If it is f of n equal to n, f of n equal to n, and g of n equal to n square.
or let me say it is f of n equal to n plus 5 and g of n equal to n square. These are two function. Okay, in such a case can we say f of n is order of g of n. Can we say this one? Or we can say f1 is order of g of n. Can we say this one? For all n greater than equal to n naught. Okay, for all n greater than equal to n naught. क्या ऐसा बोला जा सकता है? क्या ऐसा बोला जा सकता है कि f of n is order of g of n? ऐसा लिखा जा सकता है क्या? या फिर ये कह सकते हैं कि f of n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g of n, ऐसा कहा जा सकता है क्या? Yes, what do you think? ओके, सो एफ ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन ऐसा बोला जा सकता है कब? अगर ये वाली इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई करता है, राइट? अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे फिर बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन. सो वी कैन से एफ ऑफ एन is less than equal to c dot g of n. If we can write down this one, then we can say it is f of n equal to order of g of n. तो इस केस में क्या कह सकते हैं कि f of n क्या है, order of g of n है, राइट? तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट अज्यूम हियर c इक्वल टू 1. कांस्टेंट यहाँ पे मान लिया 1 है, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा, ये f ऑफ n की वैल्यू देखेंगे. f ऑफ n की वैल्यू क्या है, इट इज n प्लस 5, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू g ऑफ n. g ऑफ n क्या है, n स्केयर, सो इट इज n स्केयर, राइट? अब क्या करेंगे, विल पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यूज को पुट करेंगे. सो n इक्वल टू इनिशियली 1 अज्यूम, तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे n की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे. 1 प्लस 5 कितना हो गया, दैट इज 6. 6 इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 1 स्केयर. यस, 1 इंटू 1 स्केयर, 1 का स्केयर करेंगे तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 इज लेस देन इक्वल टू 1. तो अभी तक कौन ग्रेटर आ रहा है, अभी तक f ऑफ n ग्रेटर आ रहा है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है अभी. लेट्स सी नेक्स्ट वैल्यू, n इक्वल टू 2. n इक्वल टू 2 मीन्स इट इज n इज 2 एंड इट इज 5. सो 5 प्लस 2 इज 7. 7 इज लेस देन इक्वल टू, दिस वन इज 1 इंटू 2 स्केयर. 2 स्केयर इज 4. सो कंडीशन इज अगेन फॉल्स, ठीक है? ये वाली कंडीशन अभी भी फॉल्स है. सो विल टेक द वैल्यू फॉर n इक्वल टू 3. तो n की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 लेते हैं. सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, इट इज 5 प्लस 3 इज 8. 8 इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू 2 पावर 3, और इट इज जस्ट ए मिनट, पावर 3, n इज 3, सो इट इज 3 पावर 3. जस्ट ए मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है. हम ओके, अभी देखते हैं. सो n क्या है, 3, और 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर दैट इज 9. नाउ कंडीशन इज ट्रू. तो इस केस में क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, राइट? इसका मतलब क्या है, दिस f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n, ऐसे लिखा जा सकता है. उसके बाद n की वैल्यू अगर 4 लें तो क्या होगा, सो इट इज 5 प्लस 4 इज 9. 9 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, राइट? दैट इज इक्वल टू 16. तो कंडीशन फिर से क्या है, ट्रू है. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू क्या है, 3 लेंगे. 3 के बाद हमेशा क्या होगा, c डॉट g ऑफ n, ये वाला फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, राइट? इस n नॉट की वैल्यू के बाद हमेशा क्या रहेगा,
n इक्वल टू 3 के बाद क्या रहेगा, हमेशा ये वाला फंक्शन ग्रेटर रहेगा c डॉट जी ऑफ n, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ n को क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। f ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ पे n इक्वल टू 3 के बाद क्या होगा, हमेशा आपका ये वाला पोर्शन ग्रेटर रहेगा, राइट। यानी कि g ऑफ n हमेशा ग्रेटर रहेगा किसके बाद, 3 के बाद। तो n नोट की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, n नोट इक्वल टू 3, राइट। तो n नोट की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू 3। कई बार एग्जाम में बाय चांस पूछ भी सकते हैं कि इसमें n नोट की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यहाँ पे n नोट की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू 3। बट रेयर चांस है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो कुछ कह नहीं सकते, राइट। सो टिल दिस पार्ट इट इज क्लियर और नॉट। ओके, क्लियर। ओके, फाइन। So it is clear. Now let's see the next example. If f of n equal to n plus 100 and g of n equal to n square. Yes, this one is given. In such a case, can we write down f of n equal to order of g of n? Yes, can we write down this one, f of n equal to order of gn? क्या ऐसा बोला जा सकता है कि f of n equal to order of g of n? Yes, tell me. After n not equal to 11, yeah, so it is possible to write down. Yes, तो ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। ऐसा बोला जा सकता है कैसे, अगर ये क्या दे रखा है, f ऑफ n दे रखा है, ये क्या दे रखा है, n स्क्वायर दे रखा है, तो ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। तो इसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है, दैट f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, इन सच ए केस वी कैन से f ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, ठीक है। उसमें उस केस में क्या कहेंगे, f ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, ऐसा बोला जा सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू फॉर f ऑफ n। इट इज, sorry, this function is n plus 100, right, that is less than equal to c assume it is 1, so it is 1 dot g of n. What is g of n? g of n is n square, ओके। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट चेक द डोमिनेटिंग टर्म। सो इस वाले में डोमिनेटिंग टर्म क्या है, यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म क्या है, n, और यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म क्या है, दैट इज n स्क्वायर। तो यू फॉरगेट अबाउट दिस कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डोंट बॉदर, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग क्या है, n स्क्वायर है, यहाँ पे n है, तो n इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। यस, n इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ g ऑफ n दैट इज ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर है तो क्या लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, f ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है,
this f of n is order of g of n. This is the right one. So now it is clear or not? Clear. Okay, fine. Next one. Let's see f of n that is equal to n square plus 10 and g of n that is equal to n square plus 100, or let me say this one only n square. Yes, in this case can we say f of n equal to order of g of n, f of n equal to order of g of n, can we say? Oh, Poonam is saying yes, Sandeep saying no. Let's see. So what is f of n? F of n is n square plus 10. Let me write down n square plus 10. Okay, and if we can write down this one as a n square plus 10 is less than equal to c dot g of n. G of n is what? This one. G of n is this one, n square. ओके, कांस्टेंट मान लिया 1 है या 2 मान लो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम 1। तो इस केस में क्या होगा? हाँ, तो दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे 1 की जगह 2 भी लिया जा सकता है। तो ये जो प्लस में 10 आ रहा है इसको तो बैलेंस किया जा सकता है, इस कांस्टेंट से क्या किया जा सकता है, इसको बैलेंस किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? डोमिनेटिंग टर्म्स देखनी है। तो दोनों में डोमिनेटिंग टर्म्स क्या है? सो यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म क्या है? दैट इज एन स्केयर, और यहाँ पे भी डोमिनेटिंग टर्म क्या है? दैट इज एन स्केयर। सो वी कैन से एन स्केयर इज लेस देन इक्वल टू एन स्केयर। कंडीशन इज ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है इसका मतलब क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट डाउन दिस वन, दैट एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? Clear? Okay, fine. Now let's see the next one, that is omega notation. Omega notation represented by this symbol. Okay, so what is omega notation? So here also same thing, f and g, fn and gn are two positive function. Okay, so fn and gn are two positive function. Then next thing we can say fn is omega of g of n. fn is omega of g of n, or we can say f of n equal to omega of g of n. f of n equal to omega of g of n, if and only if f of n is greater than equal to c dot g of n, right? f of n is greater than equal to c dot g of n for all n n is greater than n naught, and where c and c naught are positive functions, constant, where c and
C and N naught are positive constant, where C and N naught are positive constant, or we can say C is greater than 0, N naught is greater than equal to 1, right? C is greater than 0 and N naught is greater than equal to 1. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एन इज जी ऑफ एन, सॉरी ओमेगा ऑफ एन, एफ ऑफ एन इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है कब? अगर एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन सी ऑफ डी, सी ऑफ जी ऑफ एन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एफ ऑफ एन इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ऐसा बोला जा सकता है. यस, टिल दिस पार्ट इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर, ओके ओके फाइन, ठीक है. तो ये क्लियर है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी, एन नॉट की वैल्यू सेम वही प्रोसीजर रहेगा, एन नॉट की वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा, राइट? सेम प्रोसीजर है, बस इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन ग्रेटर रहेगा किससे? सी डॉट जी ऑफ एन से, राइट? ग्रेटर या इक्वल रहेगा, ग्रेटर या इक्वल रहेगा, राइट? लेट्स सी, इफ इट इज एफ ऑफ एन that is equal to n plus 10 and g of n that is equal to n assume, right? In such a case, can we say f of n is omega of g of n, f of n is omega of g of n? Can we say this one? Or we can say f of n equal to omega of g of n. ओके, सो ऐसा बोल सकते हैं क्या? पूनम सेइंग इट इज यस. ओके, लेट्स सी, ऐसा कब बोला जा सकता है? यस संदीप ऑल्सो यस. हाँ, तो ऐसा कब बोला जा सकता है? व्हेन वी कैन से एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, राइट? अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, उस केस में क्या किया जा सकता है? बोला जा सकता है कि एफ ऑफ एन इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट? और another thing that c we can assume as a constant is equal to 1, ठीक है? so c क्या है? it is a constant and that is equal to 1. now here we can say f of n, n is n plus 10, ठीक है? तो f of n क्या है? that is n plus 10. और g of n क्या है? that is n. so it is greater than equal to c. c is what? 1 and here it is n, ठीक है? g of n क्या है? that is n. so यहाँ से क्या कर सकते हैं? we can remove the constant, constant को हटाया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है. then what is the dominating terms remaining? so n is dominating term here, so n is greater than equal to n. yes, it is true, ठीक है? ऐसा होता है. तो फाइनली क्या कह सकते हैं? इफ इट इज ट्रू वी कैन से दैट दिस कंडीशन इज ट्रू. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू वी कैन से एफ ऑफ एन इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है? तो एफ ऑफ एन क्या होगा? दैट इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन. सो इट इज क्लियर और नॉट? clear, okay fine. now let's see the next one, that is a theta notation. so next one is theta notation. it is represented by theta. okay, so what is theta notation? so again f and g and are two positive function and all, same story, right? so
here we can say f of n is theta of f of n is theta of g of n, right? F of n is theta of g of n, or we can say f of n equal to theta of g of n, f of n इक्वल टू थीटा ऑफ g of n। ऐसा बोला जा सकता है कब? if and only if it satisfy these two conditions। if it satisfy these two conditions, first one is f of n, just a minute, yes, f of n equal to order of g of n, okay? F of n equal to order of g of n, it means f of n is less than equal to c dot g of n, okay? And second condition, if it is f of n equal to omega of g of n, then we can say f of n is greater than equal to c dot g of n, okay? c dot g of n, right? तो अगर दोनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी, देन वी कैन से दैट एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, राइट? इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन किसके लिए है? बिगो के लिए है, राइट? इट इज द कंडीशन फॉर बिगो। ये क्या है? ओमेगा के लिए है। दिस इज द कंडीशन फॉर ओमेगा। इसका मतलब अगर कहीं पे ओमेगा और बिगो दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो क्या कहेंगे, एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, राइट? तो एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन, ऐसा बोला जा सकता है कब? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, कि वो बिगो को भी सेटिस्फाई करता है, ओमेगा को भी सेटिस्फाई करता है। इन दैट केस लेट्स सी द एग्जांपल। So here f of n equal to n plus 10 and g of n equal to n, right? Then can we say f of n equal to theta of g of n? Can we say this one, f of n equal to theta of g of n? Yes, tell me. And here there will be two constant. Let me say it is c1 and this one is c2. These are two positive constant, and n naught is what? Again a positive constant that is greater than 0, right? So satisfy karega, yes. So let's see तो यहाँ पे f of n क्या दे रखा है, तो ये क्या करना चाहिए, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? इट शुड सेटिस्फाई दिस टू कंडीशंस। तो यहाँ पे इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा क्या? लेट्स सी, एफ ऑफ एन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस 10, राइट? दैट इज लेस देन इक्वल टू सी वन डॉट जी ऑफ एन, एंड सी वन डॉट जी ऑफ एन इज गिवन एज, जी ऑफ एन क्या दे रखा है, दैट इज एन, ये एन दे रखा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लिया, अज्यूम कांस्टेंट मैंने 2 ले लिया, तो 2 इंटू एन हो जाएगा, राइट? तो फाइनली करना क्या है हमें, कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर किया जा सकता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से हैंडल किया जा सकता है, राइट? इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ हैंडल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं, और फाइनली डोमिनेटिंग टर्म्स क्या है, दैट इज एन। सो वी कैन से एन इज लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है। व्हाट अबाउट दिस वन, ये कंडीशन भी चेक करते हैं। सो इन दिस कंडीशन एफ ऑफ एन इज व्हाट, इट इज एन प्लस 10 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एन। व्हाट इज जी ऑफ एन, जी ऑफ एन इज एन, जी ऑफ एन इज एन, कॉन्स्टेंट अज्यूम इट इज 1, राइट? सो यहाँ पे कांस्टेंट को कांस्टेंट से हैंडल किया जा सकता है, डोंट वरी अबाउट दिस वन। सो व्हाट इज द डोमिनेटिंग टर्म इन बोथ, तो डोमिनेटिंग दोनों में क्या है, एन है। सो एन इज ग्रेटर देन एन,
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे n इज ग्रेटर देन n है, तो इसका मतलब कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी ट्रू है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिखा जा सकता है क्या, एफ ऑफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। फाइनली क्या कह सकते हैं, वी कैन से एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन ऑल्सो, राइट। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, इट इज ट्रू। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट। Clear? Okay, fine. Let's see one more example. So f of n equal to, it is n square plus n plus 10, and g of n equal to n square, right? G of n equal to n square. In such a case, can we say f of n equal to theta of g of n? F of n equal to theta of g of n. Can we say this one? Let's see. तो यहाँ पे इसकी डोमिनेटिंग टर्म क्या आएगी, व्हाट इज द डोमिनेटिंग टर्म हियर, एन स्केयर। सो एफ ऑफ एन के लिए डोमिनेटिंग टर्म क्या है, दैट इज एन स्केयर। और जी ऑफ एन के लिए डोमिनेटिंग टर्म क्या है, दैट इज एन स्केयर। सो जी ऑफ एन के लिए भी डोमिनेटिंग क्या है टर्म, दैट इज एन स्केयर। जब दोनों की डोमिनेटिंग टर्म क्या होती है, सेम होती है, राइट। दोनों की डोमिनेटिंग टर्म जब सेम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये बिगो को भी सेटिस्फाई करेगा, ये ओमेगा को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये दोनों का सेटिस्फाई करेगा। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो ये थीटा को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो फाइनली कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? It is clear or not? Okay, let's see one more example. So here f of n equal to n square plus 100, and g of n that is equal to n cube. In such a case, f of n equal to theta of g of n or not. Yes, इस केस में सेटिस्फाई करेगा या नहीं। Okay, so that may be the right answer. Let's see. f of n के लिए डोमिनेटिंग टर्म क्या है, n स्केयर। g of n के लिए डोमिनेटिंग टर्म क्या है, n क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि f of n that is less than equal to c dot g of n, मतलब ये किसके लिए हो गया, बिगो के लिए। तो बिगो के लिए क्या रहेगा, एन स्केयर इज लेस देन इक्वल टू एन क्यूब, कंडीशन इज ट्रू। तो बिगो के लिए तो सेटिस्फाई करेगा, बट ओमेगा के लिए कंडीशन क्या होगी, दैट इज एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, है ना। तो एफ ऑफ एन क्या है, दैट इज एन स्केयर, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एन क्या है, दैट इज एन क्यूब। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या है, ओमेगा के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। बट बिगो के लिए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा। थीटा के लिए दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सेटिस्फाई हो रहा है, ओमेगा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो गया, वी कैन से इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस वन, राइट। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन ऐसा नहीं लिखा जा सकता इस केस में। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट।
Okay, fine, good.